A very happy 75th Independence Day to all of you. I'm sure there are members in your family who have actually seen the day when we declared independence from the British. Like Bhagat Singh said at that time, the sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas. We move forward 75 years. What is it that we are looking at as independence? Is it the independence that the teenagers feel? Is it the independence of the 54% of the Indian population that is 25 years and under in age? What are we looking at as independence? Is it about our ability to celebrate however we want, whatever we want? It's time to stop and think. Yes, we must look back and think of all the sacrifices that have been made. We must look at all the people who gave up their lives for us. But here we are now in the 75th year. What are we looking at in the way forward? We are certainly looking at some amazing results, first of all, from the Olympics that have just been held and concluded, the amazing feats that our young men and women have achieved on the sporting arena, the international one at that. But what are we looking at for ourselves? What are we empowering ourselves with independence? I would be certainly looking at the ways in which we are celebrating our diversity and holding on to what we believe is right amongst ourselves as a community. There are people coming from different religions, from different experiences, from different lifestyles, but yet we are all one as the Sanskar community. What would the world look like in 10 years from now, 20 years from now, or when we get to 100 years of celebration of independence? We don't know. But certainly there is modernization that is going to take place. Everything seems to be online and on the net. The kind of jobs that we will have our children who are passing out from us this year and every next year from this one will be different. They'll be more evolved. There will be much more sense of understanding of who they can be in this modern era. There will be progress. So I look forward to the next year as something that would help us evolve even more as a community, help us celebrate our differences, help us become who we truly are. So happy 75th to each and every one of you out there. Thank you. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है, आज बड़ा हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हो। आज देशभक्ति का जज्बा कुछ ज्यादा ही लग रहा है। हाँ तो 15 अगस्त आ रहा है तो देशभक्ति का जज्बा अपने आप ही जग जाता है। इतना हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हाँ, इंडिया को हिंदी में हिंदुस्तान कहते हैं। अरे मेरे भोले भंडारी, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहने की अलग अलग कहानियाँ हैं। जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया तो सिंध बना हिंद और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। और हमारा भारत देश सोने की चिड़िया भी कहलाता था, है ना? हाँ, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत देश को यूरोपियन व्यापारी ललचाई नजरों से देखते थे। 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने भारत में रुचि लेना शुरू कर दिया। फिर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लगभग इसी समय एक पुर्तगाली व्यापारी वास्को डे गामा ने भारत आने का सपना देखा और फिर एक लंबी यात्रा के बाद 20 मई 1498 को उसने भारत की पवित्र धरती पर अपना कदम रखा। उसका जहाज कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट में सामूरी नाम के राजा का शासन था। तो तुम जाओ सामूरी के राज्य में और मैं चली बाहर। महाराज सामूरी की जय। एक पुर्तगाली व्यापारी आपसे मिलने आया है। अपना नाम वास्को डे गामा बताया। उसको ससम्मानित अंदर भेज दो। महाराज सामूरी की जय हो। आइए बैठिए। महाराज, भारत देश की वैभव कथाएं दूर दूर के देशों तक प्रचलित है। मैं भी यहाँ का वैभव देखे मंत्रमुग्ध हो गया महाराज, इसलिए आपसे यहाँ व्यापार करने की अनुमति चाहूंगा। हम भी यही चाहेंगे। हम भी चाहते हैं कि बाहर के देशों में हमारा व्यापारिक संबंध बना रहे। अनुमति है। शुक्रिया महाराज। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य भारत में अपनी समृद्धि के शिखर पर था। वास्को डे गामा को व्यापार का अधिकार देने का निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि पुर्तगालियों ने पूरे भारत में अपना व्यापार फैला लिया था।
हाँ, उन्होंने कैलीकट में एक कोठी बना ली थी और उस कोठी को किला बंद कर दिया था और वहां से शुरू हुआ गुलामी का कुचक्र। अंग्रेजों ने हमारी भलमन साहत का पूरा फायदा उठाया और भारत पर अपना कब्जा जमा लिया और हमारा देश एक गुलाम बनकर रह गया। अंग्रेजों ने हम भारतवासियों को कठपुतली बना के रख दिया था। प्रेम और अहिंसा के गीत गाने वाली मेरी इस धरती पर जब कोला और बारूद के धमाके होने लगे, तब इस वीर भूमि पर ये स्वर गूंज उठे, वंदे मातरम। राम राम भैया, क्या हाल चाल? अरे कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है भैया। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई, और क्या हाल चाल है? भाई मुझे तो लगता है अंग्रेज लोग हमारा धर्म भ्रष्ट कर ही रहेंगे। अरे क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई तुम्हें पता नहीं, सुना है कि वो अंग्रेज आटे में हड्डी का चूरा मिला के खिला रहे हैं। क्या कहा? आटे में हड्डी का चूरा? सेना के बहादुर जवानों, हमारे विलायत में एक स्पेशल नई राइफल आई है और उस राइफल के लिए हमें एक नया कारतूस भी मिला है और उस कारतूस को तुम लोगों को अपने दांतों से काट कर यूज करना है। तो चलो सेना के बहादुर जवानों, वो रहा तुम्हारा कारतूस। नहीं, हम इस कारतूस को उपयोग नहीं करेंगे। नहीं करोगे? नहीं नहीं करोगे? नहीं। समझ के रहना फिरंगी, तेरे सामने हिंदुस्तान का जवान घुटने टेकने वाला नहीं है। अरेस्ट हिम! I said arrest him! ये ले फिरंगी। हमारे शहीद क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने मातृभूमि पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनकी शहादत में एक विशाल वृक्ष खड़ा कर दिया। उसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हमने आजादी की खुली हवा में सांस ली। जब हम आजाद हुए तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा, जब सारा संसार सो रहा है तब स्वतंत्र भारत जाग रहा है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चलो भाई, इतने समय की गुलामी से अब जाके छुटकारा तो मिला। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अरे ओ महाराज, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों महारानी जी, देश आजाद हो चुका है। अगर अब खुश नहीं होगा तो कब खुश होगा? अरे बेशक देश आजाद हो चुका था, लेकिन देश की हालत बहुत खराब थी। सारा धन तो अंग्रेज पहले ही इंग्लैंड ले जा चुके थे, जिससे हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन देश की प्रगति में सबसे बड़ी समस्या थी देश का छोटी छोटी रियासतों में बटा होना। और यदि देश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना था तो जरूरत थी देश को संगठित करने की, इसके एकीकरण की। अच्छा हाँ, फिर आगे क्या हुआ? अरे फिर क्या, फिर देश को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में ली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेनन जी। जी सर। देश के रियासतों के संबंध में जो हमारे पूर्व आदेश थे, उनकी क्या सूचना है? सर, अभी हमारा देश कुल 565 रियासतों में बटा हुआ है, जिसमें से केवल 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सारी रियासतें हमारे देश को एक साथ करने के विचार से पूर्ण सहमत हैं। पर ये कौन सी रियासतें हैं जो अब भी इस कार्य को, उद्देश्य को समझ नहीं रही हैं? सर, हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और महाराज हरि सिंह जी की कश्मीर रियासत। एक और हमारे देश के वीर सपूतों ने आजादी के लिए अपने बलिदान दे दिए। हंसते हंसते भारत माता की जय जयकार करते हुए फांसी के फंदों पर चढ़ गए, बिना ये सोचे कि कौन किस रियासत से है, कौन किस राज्य से है। दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, देश को आजादी दिलानी है, हमारी भारत माता को आजादी दिलानी है। और मेनन जी,
ये रियासतें इस भावना को समझना ही नहीं चाहते। मेनन जी सर। अगर इस भारत देश को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले इसे एक रूप देना होगा मेनन जी। तभी और केवल तभी ये देश पूरे विश्व में एक विकसित देश के रूप में स्थापित हो सकता है। हमें इन छोटी छोटी रियासतों को खत्म कर पूरे देश में एकता का मार्ग सिखाना होगा, एकता लानी होगी। अनी मेनन जी जाइए और इन तीनों रियासतों को मेरा संदेश पुनः रूप दे दीजिए, और यदि तब भी ना माने तो इस संदेश को आदेश में बदल दीजिए। समझ गया सर, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा। तो भारत को एक रूप करने के लिए इतने कठिन कदम करने पड़े थे। जी हाँ, और तब जाकर ये अनेकता में एकता रूपी भारत बन पाया है। हमारे लौह पुरुष का सपना साकार हो पाया है। कैसे हर एक राज्य अपनी अपनी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को संभाले हुए इस विभिन्नता में भी एकता का परिचय देता है और संपूर्ण भारत को एक रूप प्रदान करता है। जी हाँ, संपूर्ण भारत को एक रूप प्रदान करता है। अरे सही तो कहा नटी ने। और तो और विभिन्नताओं के मामले में हमारा देश वाकई में अनोखा है। जिस तरह एक वृक्ष खुद में चींटियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों के साथ प्राण वायु को भी समेटे हुए होता है, उसी प्रकार हमारे भारत देश के ऊपर भी प्रकृति माता की अद्भुत कृपा है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सभी मौसम, सभी ऋतुएं अपनी अपनी छटाएं बिखेरती हैं और साथ ही साथ पूरे देश को अपने रंगों से भर देती हैं। और तो और जिस तरह हमारी संस्कृति विकसित हुई है वो भी अपने आप में अनोखी ही है। हर मौसम में अलग अलग फसलों की खेती और अलग अलग मनाए जाने वाले त्योहार, हर प्रांत के अपने उत्सव गीत और अपने रस्म रिवाज। तो ये है हमारा भारत, अनेकता में एकता का परिचय देता भारत। अनेकता में एकता का परिचय होता, विविधताओं के विभिन्न रंगों से रंगा इंद्रधनुष की तरह है हमारा भारत देश। हाँ, अनेकता में एकता, यही तो है हमारे भारत देश की विशेषता। 200 साल की गुलामी ने भारत को बहुत पीछे कर दिया था, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं थे। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, साइंस या फिर टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, हम निरंतर आगे बढ़ रहे थे। हाँ, भारत ने विश्व को कई उपलब्धियाँ दी हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है ऋग्वेद। तुम्हें पता है, ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला धर्म ग्रंथ है, जिसमें धर्म, न्याय, जीवन आदि के सूत्र हैं।
तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। और सबसे महत्वपूर्ण है शून्य का आविष्कार। यह सब विश्व को भारत की ही देन है। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में हमने तरक्की कर ली थी, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी बाकी थे, जिसमें से सबसे बड़ा क्षेत्र था महिला सशक्तिकरण का। हाँ, महिला सशक्तिकरण। उस समय जब महिलाओं को बोलने तक की आजादी नहीं थी, ऐसे में हमारे देश की कुछ बुलंद महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद करी और महिलाओं के हक और सम्मान के लिए लड़ी। उनमें से एक थी पंडिता रमाबाई। बधाई हो रमाबाई, कोलकाता विश्वविद्यालय ने आपको पंडितों के बीच बोलने के लिए आमंत्रित किया है। तुम्हें क्या लगता है, सौभाग्य की बात है? हाँ बिल्कुल, आपको पता है कोलकाता विश्वविद्यालय ने आपके विभिन्न संस्कृत कार्यों के ज्ञान के लिए आपको पंडित और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित करना चाहा है। जानती हूँ और प्रसन्न भी हूँ, पर लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है। अभी और लड़ना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ जानती हूँ, आपको समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहुत चिंता है। अफसोस ये है कि अपने इस प्रयास में अपनी ही परिवार की महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी अकाल और प्लेग के दौरान जब गांव का दौरा किया तो पता चला कई अनाथ बच्चे, निराश्रित महिलाएं, बाल विधवा को भी हमारी ज़रूरत है। उनके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि उनके विषय में सोचने वाला कोई नहीं। और इस तरह पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अलग जगाई। और उनकी इस यात्रा में जब भी वो हताश या निराश हुई, ऐसे में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को उन्हें सहयोग मिलता रहा। सावित्रीबाई, जहाँ हर जगह से मैं हताश और निराश हो जाती हूँ, वहाँ मुझे आप दोनों का समर्थन मिला और उससे जो साहस मिला, उसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। हम आपके साथ। आपने जो महिलाओं की जानकारी फैलाई है, उससे पूरे भारत देश को आपका आभारी होना चाहिए। आपके तर्कों से कुछ लोग दिल में ला गए हैं। महिलाओं को वो सम्मान जरूर मिलेगा जिसकी वो अधिकारी है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं सावित्रीबाई। भारतीय महिलाओं को ना ही सिर्फ पढ़ाना लिखाना है, बल्कि टीचर और इंजीनियर भी बनाने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को भी हमारे देश से मिटाना होगा। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। हमने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, उससे ऐसी कुरीतियां हमारे देश से जरूर मिटेंगी। हाँ बिल्कुल। महिलाओं की स्थिति समाज में सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं महिलाओं को शिक्षित करके ही रहूंगी। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, समाज में महिलाओं का सम्मान हो, छूत अछूत मिटे और सारी महिलाएं शिक्षित हो। ये हमारी सफलता ही तो है कि एक वर्ष में हम 5 नए विद्यालय खोल पाए। ऐसे समय में जब महिला की शिक्षा पर पाबंदी है, ऐसे समय विद्यालय का चलना बहुत मुश्किल है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप परेशान मत होइए, यह अवश्य होगा। हम सब साथ हैं। और इस तरह से साथ मिलकर उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। इन्हीं महिलाओं से प्रेरणा लेकर आज हमारे देश की कई महिलाएं, पीटी उषा, मैरी कॉम, इंदिरा गांधी, शकुंतला देवी और कई महिलाओं ने भारत का नाम रोशन किया है। और हमारी आज की महिलाएं गुंजन सक्सेना, पीवी सिंधु और महिला हॉकी टीम, जिनकी वजह से हमारा सर गर्व से उठ गया। और आज हम इन्हीं महिला शक्तियों को नमन करते हैं और उनको समर्पित करते हैं अपने आजादी के तराने। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। कभी तो हमें
सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू और आई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धोकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहि तू रंग दे बसंती यारा, मोहि तू रंग दे बसंती। चुके तेरी आगे सर, तेरी गोद मेरा घर, तुझे सलाम इंडिया। चुके तेरी आगे सर, तेरी गोद मेरा घर, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। जया है, जया है, जया है, जया 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 हाँ, तो देखा सकी, इस तरह हमारी आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर हंसते हंसते आजादी के तराने गाते हुए अपने प्राण मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिए। हाँ, और आजाद भारत की उन्नति की जिम्मेदारी देश के कर्मठ युवाओं के हाथों में सौंप गए, और युवाओं को प्रेरणा स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान हस्तियों से मिली। हाँ, मैंने तो यह भी सुना है कि देश की गुलामी के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक सम्मेलन में सबकी बोलती बंद करवा दी थी, और उस समय वहाँ भारत का परचम लहरा दिया था। मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबको एक स्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ। रुचिनाम वैचित्र याज्य कुटुल नाना पथ जुशाम, मृणामे को गम्यस्वमसि पैसा मरण। अर्थात जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे हैं प्रभु। अलग अलग रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलकर हम तुझ में ही समा जाते हैं। ये सभा जो आज तक की आयोजित सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, स्वतः ही गीता के इस उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत में इसकी घोषणा करती है। अंततः मैं दुनिया भर के युवकों को बस इतना कहना चाहता हूँ कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। ऐसे अद्भुत ज्ञानी महापुरुष के अनमोल विचारों से हमारे साथ साथ आने वाली कई पीढ़ियां धन्य हो गई। और एक और महान वैज्ञानिक शिक्षक ने भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया था, भारत का गौरव, भारत रत्न स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, बस वो उसे शिद्दत से करने की ठान ले। बार बार असफल होने के बावजूद हिम्मत हारे बिना उनके साहसिक प्रयासों ने आजाद भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन वह जितने महान वैज्ञानिक थे उतने महान शिक्षक भी थे।
प्रकृति वह पर्यावरण प्रेमी भी। और जानती हो, अग्नि मिसाइल के परीक्षण के एक शाम पहले उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत से क्या कहा था? कलाम, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? सर, कल अग्नि की परवाज़ कामयाब होगी या नहीं, बस इसी सोच में पड़ा हूँ। तुमने पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत करी है, फिर भी ऐसा क्यों सोच रहे हो कलाम? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारे पिछले असफल परीक्षणों के प्रति इस देश की मीडिया ने जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, बस उसको लेके थोड़ा चिंतित हूँ। अग्नि की परवाज़ जरूर कामयाब होगी। अब बताओ, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि हम 1 लाख पेड़ों की कोपलियां लगाएं। जरूर। सुना तुमने उन्होंने क्या कहा? 1 लाख पेड़ों की कोपली लगाएंगे। इसका मतलब इतने महान वैज्ञानिक को भी बहुत अच्छे से पता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के लिए बहुमूल्य है हमारा पर्यावरण, जिसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हाँ, आजकल मनुष्य आगे बढ़ने की होड़ में पर्यावरण को हर ओर से नुकसान पहुंचा रहा है और निजी स्वार्थ के चलते भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच ही नहीं रहा है। हाँ, और तभी तो इस दुनिया को इतनी भयानक महामारी से जूझना पड़ रहा है। पर वो कहते हैं ना, अब नहीं जागे तो कब जागोगे? मनुष्य अपनी गलतियां सुधार रहा है, अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहा है। और अटल बिहारी जी अपनी कविता में कह भी तो गए हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। फिर सब ठीक होगा, झूमेंगी गलियां, खिल उठेंगी मुरझाई कलियां, आजादी भरा जीवन होगा एक बार फिर चारों ओर, मनाएंगे उत्सव, फिर चमकेगा सूरज, फिर होगी खुशियों की गोर। भारत अनोखा राग है, रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, ये प्यार का संगीत है, ये शांति का गीत है, ये एकता का राग है, भारत अनोखा राग है। जय इंडिया, जय भारतम, जय इंडिया, जय भारतम। विश्व गुरु का मान लेकर, शून्य का सम्मान लेकर, प्रजातांत्रिक ज्ञान लेकर, अमन का अरमान लेकर, विश्व में खिलता कमल, जय इंडिया, जय भारतम, जय इंडिया, जय भारतम। ओ
खुलती हुई खामोशियाँ, अब क्या ज़मीं क्या